So today we will going to deal about androecium, and as we know, androecium is a male reproductive part of a flower. So before starting this, let me clear you the diagram of an androecium, how it does look. So simple, it contains of only basically two main part. The first part will be the filament, and the second part will be the anther. Filament basically helps in attaching with the style, and anther is a main part which contain the male gamete. As we know that anther is basically responsible for the transfers of male gamete. So it basically composed of two part. First will be the filament and second will be the anther. So now we have to study about how the male reproductive of the androecium is different in different flower, or you can say that how many types of androeciums are present in different kinds of flower. So first you can see androecium. First of all, the androecium will be we will going to divide androecium on the basis of the first point, on the basis of cohesion of stamen. How this stamen, or you can say that how the stamen is attached with each other. As we know that stamen is also a male reproductive organ. You can see androecium is a collection of stamen, or you can say that stamen, what is it? Stamen is a collection. When all the stamen will be collected together, it will be known as the androecium. Let me make it very clear. Stamen will be a singular part. When it will become collected, it will known as the androecium. So let us see कि how does a stamen are attached with each other. Cohesion are basically meant for the cohesion basically means attachment. How the stamen are attached with each other and how we can differentiate in a different part. So on the basis of that cohesion of stamen, this has been divided into monoadelphous, diadelphous, polyadelphous, and it is syngenesious. In four parts it has been divided. So we can look at the first diagram. If you are going to have a look at the monoadelphous part, you can say that we're going to know that stamen are fused. In this you can't differentiate. Here you can say that in monoadelphous filament of all the stamen are fused. That means there will be no filament. All the filament are fused to each other to form a single bundle or tube, and the anthers are free. You can see that the anthers are free, but you can't differentiate the filament. All the filament are fused with each other. Filament of all the stamen are fused together into a single bundle, and the anthers are free. In the first, as we know that mono means one, di means two, poly means more than two or many, we can use the word many, and syngenesious means any of the things will be in collected form, then it is known as the syngenesious. So first monoadelphous diagram से आप लोगों को पता चलेगा. Diagram, just you look at the diagram, you can see filament united into one bundle. जो filament है वो क्या हो गया है, united into one bundle, एक bundle है. और जो anther है, ये जो anther दिख रहा है आप लोगों को, the anther जो होता है वो क्या है आप लोगों का, free है. Filament united into one bundle and the anthers are free. When you look at the second diagram, ये डाइएडल्फस है. मैंने आप लोगों को बताया है कि डाई कहीं पर भी रहेगा उसका मतलब होता है टू. यू कैन सी दैट जो फिलामेंट है
it is united to form two bundle, 1 and 2. Here there is 2 bundle, this is 1 and second will be the 2. तो ये 2 बंडल में अरेंज रहते हैं, एक क्या रहता है कलेक्टिव फॉर्म में और ये क्या रहता है यूनाइटेड. दैट मीन्स स्टेमेन आर फ्यूज टू फॉर्म 2 बंडल्स. फिलामेंट ऑफ द स्टेमेन आर फ्यूज टू फॉर्म 2 बंडल्स एंड एंथर्स आर फ्री. यहाँ पर भी एंथर फ्री रहता है बट जो फिलामेंट रहता है वो 2 बंडल बना लेता है. पॉली में फिलामेंट आर यूनाइटेड टू फॉर्म मोर देन 2 बंडल. यहाँ पर यू कैन सी देयर आर मैनी बंडल्स. तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो फिलामेंट है are united to form more than 2 bundles. Or syngenesious, the anther are united together but the filaments are free. Very important. तीनों में in all the 3 you can see कि फिलामेंट फ्यूज़ हो रहे हैं. फर्स्ट वाले में फिलामेंट 1 बंडल में फ्यूज़ हो रहा है, सेकंड वाले में फिलामेंट 2 बंडल्स में फ्यूज़ हो रहा है, थर्ड वाले में जो फिलामेंट है वो 3 बंडल में फ्यूज़ हो रहा है. बट यहाँ पे जो है वो फिलामेंट फ्री होते हैं जबकि एंथर यहाँ पर क्या होते हैं फ्यूज़ होते हैं. जबकि हम लोग बाकी में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एंथर फ्री है, यहाँ पर भी एंथर फ्री है, यहाँ पर भी एंथर फ्री है, बट यहाँ पर जो है वो एंथर यूनाइटेड है यानी इट इज़ नॉट फ्री एंड द फिलामेंट्स आर फ्री. तो दिस आर द 4 डिफरेंशिएट बिटवीन the monoadelphous, the diadelphous, the polyadelphous and the syngenesious. I hope it is clear. Then we will go to the next part. Second जो है वो relative length of the stamen. स्टेमेन के लेंथ के बेसिस पे हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है. On the basis of length, when we go to the second part, so here on the basis of length, first वाला cohesion of stamen, how the stamen are attached with each other, और second है on the basis of length of stamen. स्टेमेन के लेंथ के बेसिस पे हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला है आप लोगों का डाइडायनामस एंड सेकेंड है आप लोगों का टेट्रा डायनामस. डाई अगेन, डाई मीन्स 2, टेट्रा मीन्स 4. नाम से ही क्लियर हो जाएगा मैटर. जब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है डाइडायनामस में 2 लॉन्ग स्टेमन है और 2 शॉर्ट स्टेमन है. यू कैन से दैट 2 ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेरी शॉर्ट एंड 2 ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव आर वेरी लॉन्ग. और यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है 4 लॉन्ग है. एज द नेम सजेस्टेड दैट टेट्राडायनामस, टेट्रा मीन्स क्या होता है 4. तो 4 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 लॉन्ग स्टेमन एंड 2 शॉर्ट स्टेमन. तो ये रिलेटिव लेंथ ऑफ द स्टेमन के बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड द एंड्रोशियम इनटू 2 पार्ट, डाइडायनामस एंड दूसरा क्या होता है टेट्राडायनामस. डाइडायनामस 2 लॉन्ग स्टेमन, 2 शॉर्ट स्टेमन्स, डाई मीन्स 2 और टेट्रा वाले में क्या होता है 4 लॉन्ग स्टेमन एंड अदर्स आर शॉर्ट. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एडहेशन ऑफ स्टेमन. थर्ड विल द एडहेशन. थर्ड जो होता है that is the adhesion of stamen. adhesion of stamen के बेसिस पे adhesion means यहाँ पर भी adhesion कहलाया जा रहा है. यहाँ पर that means how attachment of stamen with the walls. यहाँ पर जो कोहेजन ऑफ स्टेमन था यानी कोहेजन एक दूसरे से ही कैसे अटैच है, जबकि यहाँ पर हम लोग को हो रहा है अडहेशन. अडहेशन ऑफ स्टेमन दैट मीन्स यहाँ पर स्टेमन अपने वॉल्स के साथ कैसे अटैच रहता है. वॉल्स दैट मीन्स आइदर इट विल बी कैलिक्स, आइदर इट विल बी कोरोला, उनके साथ कैसी अटैचमेंट रहती है. इस बेसिस पे क्या किया गया है इसको 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में क्या किया गया है डिवाइड किया है. फर्स्ट जो है पहला होता है एपिपेटालस. एपिपेटालस सेकेंड विल बी एपीफाइलस और थर्ड जो होता है वो होता है गाइनेंड्रस. नाम से ही समझ में आ रहा है पेटालस, फिलस एंड तीसरा है एंड्रस. तो पेटल एज वी नो दैट पेटल का मतलब होता है आप लोगों का कोरोला. यू कैन सी एपिपेटालस, एपिफाइलस एंड गाइनेंड्रस. एपिपेटालस मीन्स हाउ द स्टेमन are attached with the petal
petal, that means corolla. हाउ दी स्टेमन अटैच विथ फाइलस, मैं तो आपको पहले ही बताया था फाइलस बेसिकली टेपल के लिए यूज़ होता है या पेरियांथ के लिए यूज़ होता है. मैंने पेरियांथ इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. और थर्ड वाला जो होता है वो ये, क्योंकि गायनीशियम से याद होना चाहिए आप लोग गायैंड्रस, दैट मीन्स हाउ इट हैज़ बीन अटैच्ड विथ द गायनीशियम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो इस बेसिस पे इसको क्या किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है. तो पहला, जब पूरी तरह से स्टेमन जो है वो पेटल के साथ अटैच रहेगा देन इट इज़ विल बी नोइंग एज द एपिपेटाइलस. जब वो पूरी तरह से पेटल के साथ अटैच रहेगा देन इट इज़ नोन एज द एपीफाइलस. और अगर वो पूरी तरह से गायनीशियम से अटैच रहता है देन इट इज़ नोन एज द गायैंड्रस. आई होप इट इज़ क्लियर. तो ये 3 पार्ट है. अब 4th वाला जो है इसमें हम लोग बताएंगे कि अटैचमेंट of filament attachment of anther to filament. एंथर अपने फिलामेंट के साथ कैसे अटैच रहता है. तो ये 4 बेसिक टाइप के. फर्स्ट जो होता है वो होता है आप लोगों का बेसी फिक्स्ड. First will be basifixed, second will be adnate, third will be dorsifixed, and the last will be versatile. नाम से ही when it will be fixed with based, adnate which runs over the full body of anther. यानी फर्स्ट जो रहेगा एंथर के साथ, जो एंथर रहेगा वो फिलामेंट के बेस से अटैच रहेगा. सेकेंड वाले में जो होता है, इफ़ यू गोइंग टू सी द डायग्राम, सेकेंड वाले में एडनेट वाले में जो होता है फिलामेंट रन द होल लेंथ ऑफ द एंथर. जो फिलामेंट होता है वो एंथर के पूरे लेंथ को कवर करता है. थर्ड वाला इट विल अटैच टू द डॉर्सियल यानी डॉर्सल साइड से. और यहाँ पर जो होता है फिलामेंट अटैच किसी भी एक पॉइंट पे और जो एंथर रहता है वो एयर में स्विंग करता है फ्रीली. दैट मीन्स इट इज़ वेरी लूजली अटैच. एक सिंगल कहीं पर भी सिंगल पॉइंट से अटैच रहता है तो टाइटली अटैच रहता है, बहुत ही लूजली अटैच रहता है. और बेसिकली जो एंथर पार्ट रहता है वो